Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Mansoor Waqas. I am the lecturer in physics, University of Education, Johorabad campus. Our subject title is Mechanics 2 and its course code is PHYS 1114. Today I deliver lecture number 3 of this subject. In previous lectures, we have discussed about angular variable such as angular displacement, angular velocity and angular acceleration, and we also derive the relationships in vector forms, and also discusses the numericals related these. Now today we have discussed about rotation with a constant angular velocity, and also derive the first equation of motion in angular form and second equation of motion in angular form. This is our topic. Secondly, we have discussed about torque. What is the torque, and what is the applications of the torque and torque of the of rigid bodies. Third, shortly we have discussed about moment of inertia, and at the last we have discussed about numerical problems related about torque or moment of inertia. Our first topic is rotation with constant angular acceleration of a rigid body. हम जानते हैं कि जब बॉडी को फिक्स्ड एक्सिस के साथ अगर हम मूव करें तो वो बॉडी रोटेट करती है, अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस रोटेट करेगी। अब इसमें जो हम जानते हैं कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट वे है मोशन का, या आप जानते हैं कि सिंपलेस्ट वे होता है मोशन का कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उस सूरत में हमारे पास बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, और जब बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो बॉडी जो है, इसका मतलब ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, अब वो चाहे फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है या लीनियर मोशन के अंदर भी सिंपलेस्ट वे यही होता है कि बॉडी की एक्सेलरेशन क्या हो जाए, बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो, द सिंपलेस्ट मोशन इज दैट द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। अच्छा, secondly, the next simplest motion is the in which acceleration is constant, कि जिसमें acceleration बॉडी की क्या हो जाए, constant हो जाए। उसमें क्या ऐसी जो मोशन है वो हमारे पास दूसरी हम मोशन समझते हैं कि जो हमारी सिंपलेस्ट मोशन है। अच्छा, before we can derive the equation that give the angular velocity omega and angular displacement theta as a function of the टाइम t, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे कि हम फर्स्ट इक्वेशन की उस सूरत में हम ड्राइव करें जब हमारे पास बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट हो जाए। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन दी, तो फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का हमें पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। वी आल्सो डिफाइन दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने इसकी रिलेशनशिप आखिर में लिखी, आप देख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर dt। In previous slide, we write the mathematical relation between angular acceleration. Now we cross multiplication, we get the d omega equals to alpha dt. Okay, now we know that the first equation of motion is the relationship between velocities, where initial velocities and final velocities. So we get the first equation of motion, we derive the first equation of motion to integrate the first expression, above expression,
अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स को भी पुट अप करेंगे। तो हमने देखा ये कि हमने जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले लिमिट्स ली कि जब अगर t 0 हो, जब टाइम 0 होगा, when the time is 0, it means the angular velocity of the body is v omega naught. It's mean that it is the initial velocity, that is omega naught when t equals to 0. And when time is t, the angular velocity is omega. This omega is the you say that is the final velocity, and omega naught is the initial velocity. Now we integrate the above expression, the first expression, in second terms. You see omega naught to omega d omega, which is equals to 0 to t alpha dt आ गया। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना, दोनों साइड पे आपने लिमिट्स डाल के इसको इंटीग्रेशन कर दी। अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, कैरिंग आउट द इंटीग्रेशन लिमिट्स, तो फर्स्ट आप यू सी लेफ्ट साइड ऑन द डेट सिंपली यू पुट द ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ गया, ठीक है। आपने फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट्स आपने पुट अप कर दी। अब जब आपने फाइनल माइनस इनिशियल पुट अप की तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आपके पास आ गया। दूसरी साइड पे आप देखें, आप राइट साइड के ऊपर देखें तो आपके पास क्या चीज आ रही है कि अल्फा आपके पास आ रहा है। अब आप राइट साइड के ऊपर देखते हैं तो राइट साइड के ऊपर देखें कि आपके पास अल्फा जो है, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अल्फा आपके पास क्या चीज आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, और अल्फा को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे और सिंपल आप टी ले लेंगे आप इसकी भी इनिशियल फाइनल जब आप पुट करेंगे तो ये सिर्फ आपके पास क्या चीज आ जाएगी, अल्फा टी आ जाएगा। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट विच इज इक्वल्स टू अल्फा टी। आप ओमेगा नॉट को दूसरी साइड के ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये दिस इज द रोटेशनल एनालॉजी सिमिलर टू द ट्रांसलेशनल एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास रोटेशनल फॉर्म आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगर आप इसको ट्रांसलेशनल के साथ कंपेयर करें तो वहां पे क्या था, v इज इक्वल्स टू vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at आप लोग लेते थे। v जो था उसमें लीनियर वेलोसिटी थी, ठीक है ना, और vi जो थी वो उसकी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी थी। vf क्या थी, आपके पास फाइनल लीनियर वेलोसिटी थी। वहां पे सिंपल एक्सेलरेशन आ रही थी, यहाँ पे आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ रही है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ गया। Before deriving the second equation in rotation form, firstly we have discussed about the second equation in linear form. We know that the second equation in linear form is the relationship between displacement and initial velocities and acceleration of the body. Similarly, second equation in rotational form is also the relation between angular velocity and initial angular velocities and alpha. That means angular acceleration. Now, to derive the second equation by using the definition of angular velocity. Now we know that angular velocity is the rate of change of angular displacement with respect to the time is called angular velocities. That is, in mathematical form we have also written as omega is equals to d theta over dt. d theta is the rate of change of angular velocity with respect to time is called angular velocity. Acha, now d theta, now we have the क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या चीज आ जाती है, डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा dt। आप सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर देखें आपके पास आ गया डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा dt आ गया। अच्छा, अब आपके पास जब ये रिलेशनशिप आ गई, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपका अगला ये है कि हमने सिर्फ डी थीटा जो है, क्योंकि वो एक स्मॉल क्वांटिटी के लिए है, हमारा स्मॉल क्वांटिटी के लिए नहीं, मकसद हमारा होल के लिए मकसद है, तो पूरे के लिए
करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अब हमने अबव इक्वेशन को ही क्या करना है, इंटीग्रेट। नाउ वी इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन बाय अप्लाइंग द सुइटेबल लिमिट्स। ठीक है, अब हम लिमिट्स पुट अप करेंगे। सबसे पहले हम इनिशियल लिमिट्स पुट करेंगे। इनिशियल लिमिट्स क्या होंगी कि क्योंकि टाइम का फैक्टर आ रहा है तो सबसे पहले इनिशियल इसकी जो हमारे पास हो जाएगी लिमिट हो जाएगी वो t इक्वल्स टू 0 होगी। व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब t 0 होगा तो इसका मीन क्या होगा कि जब टाइम 0 होगा तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसके अप्रॉक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब टाइम 0, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली जब टाइम आपके पास t होगा तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे हमने ये पुट अप कर दिया। यही दो जो हमारे पास है कि क्या हम पुट अप करेंगे t इक्वल्स टू 0 टू t और थीटा को हम पुट करेंगे 0 टू थीटा। From previous expression, you see that d theta is equals to omega dt. Now we have applied the integrations with applying the suitable limits. You see on the screen on first expression on left hand side 0 to theta d theta equals to right hand side 0 to t omega dt. Now using the first equation of motion, we know that the final velocity of the body is vf is equals to omega is equals to omega naught plus alpha t. This first expression, this first equation of motion is put in the above values. In second expression, you see by applying the integration limits on left hand side that आप देख रहे हैं कि आपने जब इधर क्या किया कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई की तो आपके पास क्या चीज आ गया, थीटा आ गया। दूसरी साइड के ऊपर आप जब जाते हैं व्हेन वी यूज द लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी पुट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने क्या किया, ओमेगा की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट अप कर दिया। अब जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पुट अप किया तो ये आपके पास क्या चीज आ गई, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आ गई। ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या थी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी थी। ये हमने यहाँ पे पुट अप कर दी। इसको पुट अप करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। नाउ वी after putting the equation, now we perform the integrations. अब आप इंटीग्रेशन को जब परफॉर्म करेंगे दोनों साइड पे आप अलग-अलग परफॉर्म करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये आपके पास जो राइट हैंड साइड पे जो आपके पास फर्स्ट टर्म है ये ओमेगा नॉट dt आ जाएगी। ओमेगा नॉट क्योंकि कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट तो आपके पास आपकी इनिशियल वेलोसिटी है तो ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ओमेगा नॉट dt आ जाएगी। इसी तरीके से दरमियान में क्या किस चीज का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और आप फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी, अल्फा टी आ जाएगी और dt आ जाएगी। अच्छा, अब ये अल्फा टी dt आपके पास जब आ गई तो इसके अंदर अल्फा जो है वो आपकी, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया कि वी नो दैट द बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस द अल्फा इज द कांस्टेंट। द अल्फा इज द कांस्टेंट, द अल्फा जो है वो भी आपका क्या चला जाएगा, बाहर इंटीग्रेशन से बाहर की साइड पे चला जाएगा। अब जब अल्फा बाहर की साइड के ऊपर चल जाएगा तो टी की आप लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो टी है एक सिंगल वैल्यू है तो सिंपली इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। नाउ वी अप्लाई द पावर रूल ऑफ द इंटीग्रेशन, इट मींस द टी स्क्वायर अवर 2 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव जो होगी वो लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर अवर 2 आ गया। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई, किसके दरमियान आ गई, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन angular displacement and initial angular velocity and angular acceleration, constant angular acceleration of the body, which is the similar corresponding results of our translational motion with constant acceleration. अगर हम translational motion के अंदर बात करें तो translational motion के अंदर यही रिजल्ट किस चीज से हम लिखते हैं, s is equals to vit plus half AT स्क्वायर। तो उसमें और इस रिलेशनशिप के अंदर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर वहां पर लीनियर वेरिएबल्स आ रहे थे, यहाँ पे आप देखें इसमें क्या चीज आ रही है, एंगुलर वेरिएबल्स आ रहे हैं। Today our the next topic is
the torque, we know very well the turning effect of the force applied on the body is at a point having some distance from axis of rotation is called torque. हम जानते हैं कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, जब बॉडी को फिक्स कर दिया जाए और बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, तो जब बॉडी उसी फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये जो बॉडी रोटेट करेगी अबाउट द फिक्स पॉइंट, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या है, बेसिकली द फोर्स है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी जो है वो फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। नाउ अगर now we discuss the mathematical form of the torque. The mathematical form of the torque, when the cross product of the force F applied on the rigid body at a point having position vector r is equals to torque tau. Tau is equals to r cross f. Mathematically हम इसको लिखते हैं tau is equals to r cross, basically it is the directional quantity, so we write as the cross product. Tau is equals to r cross f. The magnitude of the torque is tau is equals to rf sin theta, because this is cross, क्योंकि किसमें क्या चीज आ रही है, क्रॉस आ रहा है, तो क्रॉस आने की वजह से इसमें क्या चीज आ जाएगी, sin थीटा चीज आ जाएगी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड, अब जो टॉर्क है ना वो बेसिकली दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। द टॉर्क डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म इज द बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, द एक्सिस ऑफ, फर्स्ट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेकंड वन इज द वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। द टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फोर्स and the movement arm of the body, and it is also depends upon angle of the force, angle between the both vectors r and f. In previous slide we know that the torque is the tau is equals to rf sin theta. The torque is maximum when the angle between both vectors, that is it means the movement arm and force, the angle between both vector is when theta is equals to 90 degree, then it means the torque is maximum. When angle between theta is equals to 0 degree, it means the r, movement arm and force, the angle between movement arm and force is theta is equals to 0 degree, then it means torque is 0. It means that generally we discusses that it means the force is parallel, the applied force is parallel to the movement arm, so it means the torque is 0. Only the torque is maximum when the both vectors are perpendicular to each other, or the angle between the both vector is equals to theta is equals to 90 degree. The SI unit of the torque is Newton meter, because we know that the torque is equals to RF. R is the movement arm, so its unit is meters. It's because it is analogy of the length, and applied force is the force applied on the body, so its unit is the Newton. So the combined unit of the torque is Newton meter. It's according to dimensionally, this unit is similar to the work done on the body, or it is also आप कह सकते हैं इसको कि ये बेसिकली क्या है, जो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर, वो सिमिलर है जूल के। ठीक है, लेकिन जो जूल जो है वो जो वर्क डन है, वर्क डन को क्योंकि हम लोग किसके अंदर लेते हैं, वर्क डन को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वजह से या वहां पे हम लोग उसकी यूनिट जूल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कह देते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, न्यूटन मीटर ली हुई है। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है, सेम है, जिस तरीके से आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपने डायरेक्शन देखी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आप लोग किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर
इसकी डायरेक्शन देखने के लिए आप लोग राइट हैंड रूल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसकी फाइंड आउट करेंगे, अगर बॉडी क्लॉकवाइज है तो आप लोग टार्क जो है वो नेगेटिव लेंगे, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो आप टार्क इसका क्या ले लेंगे, पॉजिटिव टार्क ले लेंगे। अच्छा, now the next topic about the torque is torque of rigid body. What is this? Firstly we have discussed the rigid body. Rigid body क्या है? देखिए, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी कि जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाए, लेकिन उसके जो बॉडी के पॉइंट्स हैं, जो बॉडी के मैसेस हैं, वो अपनी जगह से अपनी जगह पे ही रहे, फिक्स्ड रहे। तो जो ऐसी बॉडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक रिजिड बॉडी नजर आ रही है। ठीक है, आपको एक रिजिड बॉडी नजर आ रही है, उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक हमने पिवट पॉइंट लिया। ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं कि जो हमारा रोटेशनल एक्सिस है वो हमने ले लिया, उसको हमने O से जाहिर कर दिया। एक हमने बॉडी के एक एज पे एक पॉइंट लिया, उसको हमने P पॉइंट का नाम दे दिया, और इस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की। अब जब हम बॉडी के ऊपर यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, उस पिवट पॉइंट O के गिर्द या एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। In previous slide we discussed that the distance between O and P is मूवमेंट आर्म। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि O और P के दरमियान का जो फासला है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मूवमेंट आर्म का नाम दे सकते हैं। पॉइंट P है जिसके ऊपर जहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस जगह पे हमने फोर्स अप्लाई की है तो ये पॉइंट P है, और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो O पॉइंट के गिर्द क्या करेगी, रोटेट करेगी। Consider a force Fx on a body at point P having position vector r relative to the pivot point O r axis of rotation। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने फोर्स अप्लाई वहां पे की है उसके मैं क्या करूंगा, उसके वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम। बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स थे जिसमें जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम दिया जाता है। इसमें देख सकते हैं कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक आपके पास जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट बन रहा है जिसके दरमियान एंगल फाई बन रहा है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एफ कॉस फाई आ गया। इसी तरीके से जो वाई के अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट बन रहा है वो क्या आ गया, आपके पास एफ साइन थीटा आ गया। तो फ्रॉम फिगर हम देखें तो अगर हम फिगर से देखते चले तो जो x का कंपोनेंट बन रहा है, तो फ्रॉम फिगर वी सी दैट द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द फोर्स इज पैरेलल टू द मूवमेंट आर्म। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल हो गया, आपके पास मूवमेंट आर्म के पैरेलल हो गया। तो जब ये मूवमेंट आर्म के पैरेलल हो गया इसका मतलब ये क्या है, इसके अलोंग कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, क्योंकि जो लाइन एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं वो पैरेलल हो गई हैं, किसके, मूवमेंट आर्म के। अब जब लाइन एक्शन ऑफ फोर्सेस पैरेलल हो गई हैं मूवमेंट आर्म के, तो यहां पे आपके पास टार्क इस कंपोनेंट के अलोंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक जो दूसरा है y कंपोनेंट है वो आपके पास क्या बन गया, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। इस ये अब जो y कंपोनेंट है ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास परपेंडिकुलर बन गया, किसके साथ परपेंडिकुलर बन गया, ये आपके साथ मूवमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर बन गया। आप डायग्राम से देख सकते हैं दोनों इस वेक्टर के y कंपोनेंट का वेक्टर और रोटेशन ये आपके पास आ गई मूवमेंट आर्म का वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से यहां पे आपके पास इस कंपोनेंट के ऊपर टार्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड्स in figure we have discussed that the torque is only produced along the x component along the y component, and fx component component along the force along x axis is 0 because the line action of forces is passing through the line of action of forces are parallel to the movement arm. It means the torque is produced only the y component, that is the mathematical relations tau is equals to fy into r.
in the second expression ta is equals to f sin phi r। अब मैंने क्या किया, मैंने आपने देखा कि मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में भी कि जो टार्क है वो सिर्फ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलॉन्ग हो रहा है या y कंपोनेंट के अलॉन्ग हो रहा है, तो सिर्फ मैंने क्या ले लिया, fy ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अब पुट कर दिया fy r पुट कर दिया और यहाँ पे मैंने f sin phi पुट अप कर दिया और ये मेरे पास r आ गया। तो टा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं इसकी ब्रैकेट्स खोलूंगा तो आप लिख सकते हैं टा इज इक्वल्स टू आर एफ साइन फाई लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लेकर जाना चाहूं तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको कंक्लूड कर सकता हूं। तो टार्क जो है, द टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ। तो टा इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं आर क्रॉस एफ हम लिया जा सकता है। तो ये चीज आपके पास आ गई, टा इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ आ गया। तो ये हमारे पास टार्क आ गया, टार्क ऑफ द रिजिड बॉडी आ गया। Today, our next topic is movement of inertia or rotational inertia. It is defined as the rotational quantity that describe the mass of the body and its distribution relative to axis of rotation is called movement of inertia. It is generally denoted as I and it is mathematically written as I is equals to mr square. Consider a point mass having mass is m is rotating about the fixed axis as shown in the figure. The distance between the point mass and the fixed axis is r. अब क्या देखेंगे कि आप लोग कि जब बॉडी को रोटेट करेंगे, जब बॉडी रोटेट होगी अबाउट द फिक्स एक्सिस तो इसका बॉडी का जो मास है वो m है। अब जो डिस्टेंस है बॉडी के दरमियान और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान वो क्या है, r है। तो I को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं I is equals to mr स्क्वायर। ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक हमारे पास रोटेशनल क्वांटिटी है, एक ऐसी एक हमारे पास रोटेशनल क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब कर रही है, किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है, मास ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस बिटवीन, किसके डिस्टेंस, मास बॉडी के दरमियान और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान। द rotational inertia depends upon the mass of the particle on the perpendicular distance between the particle and axis of rotation. As the particle distance from the axis of rotation increases, the rotational inertia increases even though the mass does not change। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि अगर ये डिपेंड कर रहा है, एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका रोटेशनल इनर्शिया भी बढ़ जाएगा, इवन उसके अलावा बेशक मास चेंज हो या ना हो। अच्छा, उसके बाद हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी जो यूनिट है आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो आपके पास क्या है, केजी मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट जो है, द यूनिट ऑफ द मास इज केजी एंड डिस्टेंस इज मीटर। So it means the square, the combined unit of moment of inertia is kg meter square. Now we discuss the numerical problem. These numerical problems are related to the today discussed topics. In first numerical starting from at rest at t is equals to 0, a grindstone has a constant angular acceleration 3.2 radian per second square. Find the angular displacement and angular speed of the grindstone 2.7 लेटर। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर, सबसे पहले वो आपको कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाले। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, थीटा निकालनी है आपको। 3.2 रेडियन पर सेकंड दिया गया है, पर सेकंड स्क्वायर निकाला है। तो थीटा आपने फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू, अब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे क्या चीज निकाल सकते हैं, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बी पार्ट के अंदर देखें, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है, एंगुलर स्पीड निकालनी है 2.7 सेकंड लेटर। तो आप ये निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। सेकंड,
Second number, grindstone is turned off when is spinning with an angular speed 8.6 radian per second. A small friction force on a shaft causes a constant angular deceleration, and the grindstone eventually comes to rest in a time 192 seconds. Find the angular acceleration. Find अल्फा इसमें हमने फाइंड आउट करना है. इन दिस प्रॉब्लम वी हैव फाइंड द अल्फा, द एंगल, द टोटल एंगल टर्न थ्रो ड्यूरिंग द स्लो डाउन. और तो बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है थीटा फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले अगर ए की बात करें, ए पार्ट की, तो उसमें एंगुलर अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये है कि 192 सेकंड के बाद बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ रही है. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या चीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बेसिकली उसकी एंगुलर डिसेलिरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है. जब नेगेटिव डायरेक्शन में होगी तो वो क्या कहलाएगी, डिसेलिरेशन कहलाएगी. अब डिसेलिरेशन कहलाएगी तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इसके अंदर हम फार्मूला पुट अप करेंगे. फार्मूला कौन सा पुट अप करेंगे, आप लोग इसके अंदर वो पुट अप कर सकते हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट अप कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब और एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप फिर इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके आप इसकी एंगल निकाल सकते हैं. थर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. थर्ड प्रॉब्लम में देखें आपको मैस दिया गया है. अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ मैस 0.17 kg ऑन द एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ द लेंथ 1.25 मीटर and negligible mass. What is the magnitude of the torque due to the gravity with pivot point O, theta is equals to 10 degree. In this numerical you can calculate the torque. कि आपने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है. टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला मौजूद है आर एफ साइन थीटा. अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि वो कहते हैं ग्रेविटी के लॉन्ग है, तो आपके पास फोर्स कौन सी लग रही है, F इज इक्वल्स टू mg लग रही है. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, F की जगह mg कर देंगे. यानी कि अब क्योंकि पेंडुलम है उसके एक R क्या होगी, उसके अंदर R जो है वो लेंथ L हो जाएगी. तो यहाँ पे बन जाएगा टा इज इक्वल्स टू mgl साइन 10 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट अप कर देंगे, 10 डिग्री पुट अप कर देंगे. सो द लेक्चर इज एंड. For further reading to understand the topics, you see that the rotational kinematics physics by Haldane-Resnick-Raine 5th edition volume 1 and rotational inertia and Newton's second law of physics by Haldane-Resnick-Raine 5th edition chapter number 9. And also you see that chapter number 10 rotation of a rigid object physics for scientists and engineers by Javet and Survey. So the class is end up, and if you any problem any problem you can email me or WhatsApp. Okay, take care. Allah Hafiz.